Hello 10th class, welcome you all once again in your online classroom. Students, hope you are studying well and do your assignment properly, well in time. And I hope all of you have read all the chapters which I discussed through the videos with you. Students, today our topic is non-aligned moment, that is the NAM. Actually students, non-aligned moment, the formation of the non-aligned moment, we can give the credit to our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. This moment, according to this moment not spotted any of the power block. In the United Nations video, I discussed the reasons for the formation of the United Nations, and one of them was the Cold War. And during the Cold War, actually the world was divided into two power blocks, USA and the USSR. The non-aligned movement was also a movement which opposed the Cold War, and it was a movement which remained neutral. In this movement, the countries who joined this movement, they remained neutral during the Cold War, means they did not want to join any of the power blocks. They wanted the peace and stability in the world. Okay, so non-aligned movement, it was a name in the short form. Previously, if I tell you that in the 1947 Asian Relations Conference was held, तो कुछ एक ऐसी कुछ conferences हुई थी before the formation of the NAM. In the 1947 Asia Relations Conference was held. Actually, it was held in the New Delhi and hosted by our Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. It was held in the month of April 1947. At the time, our country was under the British rule, but the process was going on of the Indian independence. So, main Asian countries joined this conference, and it brought together many leaders of the independence movements in the Asia. देखो, only India में movement नहीं चल रहा था उस time independence का. In the other countries of the Asia, it was also going on. तो जो main leaders थे उस time पर, जिनकी countries में, एशिया की countries में independence movement चल रहा था, they came together and represented first attempt of the Asia's unity. Objective क्या था Asia's relation conference का? To bring together the leading men and women of the Asian countries on a common platform to discuss social, economic and the cultural problems. Next, in the 1954 Panchsheel, these are the actually 5 principles which was signed between the India and China. In detail about these Panchsheel principles, I will tell you in this video later on. Next year, 1955, Bandung Conference was held. Bandung Conference, Bandung is a part of the Indonesia, where the conference was held, and it was a first large-scale Asian African conference. And mostly new independent countries, जिनको भी independence मिली थी, एशिया और अफ्रीका की countries थी जो कि mainly colonies थी of the European powers. तो जो mainly independent, newly independent countries थी एशिया and अफ्रीका की, there are mainly 29 countries who attend this Bandung conference. और main objective क्या था? For the formation of the NAM. Then in 1961, NAM formally launched at Belgrade in Yugoslavia. तो यूगोस्लाविया बेलग्रेड में नाम जो था, it was formally launched in the year 1961. Next is what were the factors responsible for the formation, or you can say what were the causes for the formation of the NAM. First of all, it was a reaction against Cold War tensions. Already I told you, it was a reaction against Cold War tensions. जो उस टाइम टेंशन चल रही थी Cold War के रिलेटेड. Cold War बताया मैंने आपको क्या होता है, that जब एक्चुअली वॉर नहीं होती, बट जो कैसे टेंशन प्रीवेज, टेंशन रहती है, किसी भी टाइम पर वॉर हो सकती है, ऐसी सिचुएशन होती है टू कंट्रीज के बीच में, टू पावर ब्लॉक्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड वॉर.
to oppose the military alliances like NATO, SITO, CENTO, Warsaw Pact, etc. Students, after the Second World War, countries के बीच में secret alliances हो रहे थे, military alliances हो रहे थे उनके बीच में. These are the name of that were alliances. So means they were one country who joined these alliances means they help each other if other country attack on them. तो इस वजह से उनको वो means जो वेपन्स हैं उसकी डिलीवरी करेंगे. तो इस वजह से ये कुछ एक ऐसे अलायंसेस थे. तो इन अलायंसेस के अपोज नेम जो था उसकी फॉर्मेशन हुई. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी न्यूली जो कंट्रीज इंडिपेंडेंस मिली थी उनके डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक देखो एक वास्ट टर्म है. इसमें आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर आपका जो है टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सारे के सारे आपके इंक्लूड होते हैं. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑल दी सेक्टर्स इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मीन्स ऑल द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दी सेक्टर्स. नीड फॉर पीस, पीस की जरूरत थी उस टाइम पर. स्ट्रेंथिंग द यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रेंथ करने के लिए भी, स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने के लिए भी जो नेम था इट वाज फॉर्म. तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नाम. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे अब नाम के? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटी मीन्स सभी कंट्रीज को इक्वल रखना. डिसआर्मामेंट बता चुके हैं पहले भी आपको इन द प्रीवियस वीडियो. मीन्स नॉट टू इन्वॉल्व इन द आर्म रेस कि वेपन्स की प्रोडक्शन में अगर आप वेपन्स ज़्यादा कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है उसके अगेंस्ट रहना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना. तो दैट इज अ डिसआर्मामेंट. सपोर्टिंग पीस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पीस को सपोर्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. हेल्पिंग द यूएन बता चुके पहले आपको, यूनाइटेड नेशंस को हेल्प प्रोवाइड करना इन टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन राइट्स. जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, जो एक ह्यूमन के पास उसके बेसिक राइट्स होने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट में हेल्प करना. एंड ऑफ इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म स्टूडेंट्स आपने आई थिंक 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में भी. यस, यू स्टडी अबाउट द इम्पेरियलिज्म. व्हेन अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल द अदर कंट्री फॉर इट्स रिसोर्सेज, उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन भी में भी उसका पोलिटिकली उसको वो कंट्रोल में रखती है फॉर इट्स ऑन बेनिफिट. दैट इज कॉल्ड द इम्पेरियलिज्म. तो ऐसे ही काफ़ी कंट्रीज थी अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूरोपियन पावर्स. तो उसको एंड करना, एंड ऑफ इम्पेरियलिज्म. क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO. क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO. देखो इंटरनेशनल ये इकोनॉमिक ऑर्डर था न्यू. इसका मेन मोटिव क्या था? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द पुअर कंट्रीज. जो पुअर कंट्रीज है उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना. दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ द NIEO. लास्ट वाज द एंड ऑफ रेसिज्म. रेसिज्म मीन्स किसी के रेस के बेस पर, किसी के आप बोल सकते हो किसी की ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म. ठीक है, किसी उसको उस बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, तो उस चीज़ को खत्म करना. एंड ऑफ रेसिज्म. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नाम. फाउंडिंग फादर्स. देखो आर्किटेक्ट्स कौन थे नाम के जिन्होंने, हु वर द फाउंडिंग फादर्स स्टूडेंट्स इन दिस ईयर. दिस क्वेश्चन, ओनली दिस क्वेश्चन कम एज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. 10th में अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, तो एज 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ओनली बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द नाम. तो कौन कौन थे? गमाल अब्दुल नसीर ऑफ इजिप्ट. Actually, these are all of the mainly head of these countries. Gamal Abdel Nasser of Egypt. Next is the Kwame Nkrumah of Ghana. Jawaharlal Nehru of India. Ahmad Sukarno of Indonesia. Joseph Broz Tito of Yugoslavia. So these are the founding fathers. Learn their names with their spellings. Next is मीनिंग ऑफ नाउन. मीनिंग क्या है इसका? इट इम्प्लाइज नॉट बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ द पावर ग्रुप. किसी भी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे आप लोग. ठीक है, जो भी मेंबर कंट्रीज ज्वाइन करेंगे नाम को, तो इट इम्प्लाइज नॉट बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ द पावर ग्रुप. इट स्टैंड फॉर पीस, कोऑपरेशन एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम द कोल्ड वॉर. रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है नाम की? In 1960,
इट डिमांडेड फ्रीडम फॉर ऑल कॉलोनियल पीपल, जो भी कॉलोनियल पीपल है, जो भी कॉलोनियल रूल के अंडर है, नाम में डिमांड की देयर फ्रीडम एंड मेड अपील फॉर दिस आर्मामेंट इन द 1960s. इन 1970s इट लेड स्ट्रेस ऑन NIEO, बता चुकी हूँ मैं आपको. तो 1970 में इसका मेन मोटिव NIEO पर फोकस किया इसने. 1980s it appeal against racial discrimination. In 1990s it stressed on need for economic development, combating terrorism को खत्म कैसे करना है उस चीज के ऊपर फोकस किया इसने in the 1990 and strengthening the UN. Next is what was the role of पंडित जवाहरलाल नेहरू, और what अगर आपको आता है क्वेश्चन what is the India's role in the name, तो यू कैन गिव द सेम पॉइंट्स, चाहे तो नेहरू रोल आए या फिर आपको आता है इंडियाज रोल इन द नैम. पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ नैम. ही वाज आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट थे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के, इंडियाज की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. अलॉन्ग विद चाइना प्रीमियर एन लई, तो चाइना प्रीमियर मीन्स उस टाइम जी एक्चुअली में चाइना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे एंड ही दैट इज एन लई. ही फॉर्म द डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील, तो डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील जो थे 5 प्रिंसिपल जो थे उसको फॉर्म किया, इन्होंने साइन किया इन 1954 एज सीनो इंडिया एग्रीमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील क्या है आपकी बुक में गिवन होंगे, यू कैन रीड इट एंड लर्न इट फ्रॉम देयर. फर्स्ट लिसन इट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो एक दूसरे की जो भी टेरिटरी है, एक दूसरे की कंट्री की, चाइना है चाहे इंडिया है, उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना. म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. इक्वलिटी. नॉन एग्रेशन मीन्स नॉट टू अटैक ऑन द वन अनदर. नॉन इंटरवेंशन इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर नहीं करोगे, जो इंटरनल अफेयर्स है किसी कंट्री के, नॉन इंटरवेंशन. पीसफुल कोऑपरेशन, और पीसफुली आप कोऑपरेशन करोगे आपस में फ्यू द mutual benefits. So these are the principles of Panchsheel. Students, please learn these principles from your book. Next is the India protests against the North Korean aggression on South Korean. आपको पता होगा स्टूडेंट, जो कोरिया एक्चुअली में इट वाज नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया था कोरिया. तो नॉर्थ कोरिया ने का जो अग्रेशन था ऑन द साउथ कोरिया, इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. इंडिया वॉज अंगेज द एंग्लो फ्रेंच इन्वेशन ऑफ द सूज कैनल. देखो जो सूज कैनल एक्चुअली में उस टाइम जो सूज कैनल फर्स्ट ऑफ ऑल इसराइल ने 1956 में, इसराइल जो था, इसराइल वांटेड टू कंट्रोल द सूज कैनल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट है, ट्रांसपोर्टेशन रूट है. तो उसके बाद इसमें एंग्लो हम ब्रिटिशर्स के लिए लेते हैं, इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड जो थे, फ्रेंच जो थे वो भी इन्वॉल्व हो गए. बट बाद में इंटरवेंशन ऑफ द US एंड द UN एंड आल्सो द एफर्ट्स ऑफ द नाम, तो जो ये इन्वेडर्स थे इन्होंने उसको स्किप कर दिया अपना आइडिया को, एंड दे विड्रॉ देमसेल्व्स फ्रॉम दिस सूज कैनल क्राइसिस. तो इंडिया वाज आल्सो एंगेज द एंग्लो फ्रेंच इन्वेशन ऑफ द सूज कैनल. नेक्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ द नैम. फ्यूचर क्या है नैम का अगर हम बात करें तो NAM still relevant with issues like disarmament and human rights. तो अभी भी ये बात कर रहा है disarmament को लेकर and human rights को. It shift from the political to economic content. पहले देखो इसका political था कि कंट्रीज को फ्री होना चाहिए, कोई पावर ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते हैं. नाउ इसका जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक कंटेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो गया अब इसका फोकस. इट टेकन द क्वेश्चन ऑफ रीशेपिंग द UN सिक्योरिटी काउंसिल. स्टूडेंट्स आपको पता है अब सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स है 5, तो उसको मीन्स अब इसकी डिमांड है कि नाम की कि इसमें और जो है कंट्रीज हैं, उस टाइम पर जब ये फॉर्म हुआ था यूनाइटेड नेशंस 5 पावरफुल कंट्रीज थी मेनली, अब और भी कंट्रीज हैं जो कि पावरफुल है, तो उनके भी मेंबर्स जो है वो परमानेंट होने चाहिए. तो आल्सो टेक द क्वेश्चन ऑफ द रीशेपिंग द UN सिक्योरिटी काउंसिल. अगर हम क्रिटिसाइज करें या फिर कंक्लूजन दें अबाउट द नाम, तो इट इज़ नॉट अ कोहेसिव बॉडी. कोहेसिव का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम मीन्स यूनिफाइड, कोहेसिव मीन्स यूनिफाइड, मीन्स अभी इतना भी यूनिफाइड नहीं हुआ है कि सभी कंट्रीज मिलकर डिसीजन लें, फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में. कन्फ्यूजन कुड बी सीन ऑन इश्यूज लाइक इराक वॉर, तो इराक वॉर जो थी उसमें भी ऐसे कन्फ्यूजन देखने को मिली हमें. कैन स्टिल प्ले ए पॉजिटिव रोल, तो अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है, नाम काफ़ी कुछ कर सकता है. इट कैन स्टिल प्ले अ पॉजिटिव रोल. लास्ट is a very important question, students. Please listen carefully.
क्वेश्चन इज हु कॉइन्ड द टर्म नाम। एक्चुअली में देखो मैंने 3-4 बुक्स स्टडी की थी तो उसमें और नेट पर भी सर्च किया इसके बारे में, तो डिफरेंट आंसर्स आते हैं इसके बारे में 2 पर्सन्स को लेकर। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है यू कैन गिव द आंसर इन दिस वे, हु कॉइन्ड द टर्म नाम। तो नाम एक्चुअली में फर्स्टली दिया किसने था ये, नेम गिवन, हु गिव दिस नेम। तो जो वीके कृष्णन मेनन थे, वीके कृष्णन मेनन कौन थे, यू कैन से ही वाज द सेकंड पावरफुल मैन इन इंडिया आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो सेकंड पावरफुल मैन थे उस टाइम पर ड्यूरिंग द 1950s, दैट वाज अ वीके कृष्णा मेनन। तो वीके कृष्णा मेनन यूज दिस टर्म इन हिज स्पीच एट यूएन। तो यूएन में इनकी स्पीच हुई थी इन 1953। उस टाइम इन्होंने इस वर्ड को यूज किया था नाम को। लेटर ऑन पंडित जवाहरलाल नेहरू यूज दिस टर्म इन 1954 ड्यूरिंग हिज स्पीच एट कोलंबो श्रीलंका। ओके, तो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में कोलंबो में उनकी स्पीच हुई थी श्रीलंका में, वेयर ही यूज दिस टर्म। तो इन दिस वे यू कैन गिव योर आंसर बाय गिवन द बोथ नेम एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन। Students, this is all about today's and I have one information for you. Actually students, some students of this new 10th class demanded my notes, then I in the if you have connection with the previous जो हमारी old 10th 2 class के students थे उनके पास बेटा मेरे कुछ एक नोट्स हैं जो मैंने को उस टाइम अवेलेबल करवाए थे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। You can get it from them. It will be helpful to you. Okay, then have a nice day. Goodbye all of you.